شبیر نے مریدکے میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کہ انتہائی محدود آمدنی میں اپنے بچوں کے ساتھ گزر بسر کر رہا تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر بجلی اور گیس کا بل جیسے تیسے ادا کر رہا تھا، لیکن ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ یہ چھوٹی سی دکان مریدکے میں کمبوہ کالونی کے ایک گھر میں کھولی گئی تھی۔ دکان دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے مالک کی مالی حیثیت کیا ہوگی۔ بچوں کی دلچسپی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں بکنے کے لیے رکھی جاتی ہیں یا محلے والوں کی روزانہ کی چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ دکان کے ساتھ ہی مکان کی دیوار پر بجلی کا میٹر بھی لگا ہوا ہے، جسے محکمہ بجلی کے اہلکار نہ جانے کب آ کر پڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد دیگر صارفین کی طرح اس صارف کو بھی بل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ دکان ہے مقصود احمد کی۔ مقصود کی ایسی کوئی خاص عمر بھی نہیں ہے، محض 32 سال کا ہے۔ جلدی شادی ہو گئی تھی اور وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ ایک بیٹا میٹرک کا طالب علم ہے۔ دکان اور دکان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقصود کو جو چیز سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ بجلی کے بل کی ادائیگی۔ شبیر نے دیکھا کہ صبح دکان کھولنے سے پہلے مقصود خاص طور پر ایک کام کیا کرتا تھا، اور وہ یہ کہ میٹر پر نظر ضرور ڈالتا تھا، لیکن اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ سنیں، چائے تیار ہے، ناشتہ کر لیں پھر دکان کھولیے گا۔ ارے نہیں یار، چائے ناشتہ دکان پہ ہی بھیج دو، میں دکان کھول رہا ہوں۔ اچھا بات سنو، وہ اسٹول کہاں رکھا ہوا ہے؟ کل آپ دکان پہ لے کر تو گئے تھے اسٹول۔ ارے ہاں چلو ٹھیک ہے، تم چائے ناشتہ دکان پہ بھیجو۔ مقصود نے گھر سے نکل کر میٹر پر ایک نظر ڈالی، پھر دکان کا تالا کھول کر اسٹول باہر نکالا اور اسٹول پر چڑھ کر میٹر دیکھنے لگا۔ مسعود بھائی چینی دے دو۔ ہاں بیٹا رک جا، ابھی دیتا ہوں، ذرا میٹر چیک کر لوں میں۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ ارے بیٹا میٹر چیک کر رہا ہوں، میں نے ابھی تک کتنی بجلی جلا دی؟ ابا کہتے ہیں آپ کتنا بھی میٹر چیک کر لو، بل تو وہ اپنی مرضی سے ہی دیں گے۔ ارے بیٹا تیری بات بھی ٹھیک ہے، چل تو اسٹول پکڑ، میں نیچے اتروں۔ ہاں بھائی بچہ، کیا بول رہا تھا تو؟ میں یہ کہہ رہا تھا چینی دے دو۔ چل آ جا بیٹے آ جا۔ ارے بھائی بیگم، ارے بھائی سنتی ہو؟ چائے دے دو مجھے کھڑکی سے۔ دے رہی ہوں۔ اور وہ یونٹ کا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ارے ہاں خیر ہو گئی، بس میرا خیال ہے 1500 2000 کا ہی بل آئے گا انشاءاللہ۔ میں بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی، شکر ہے اس مہینے کم بل آئے گا۔ پتا ہے اس مہینے بیٹے کی اسکول کی فیس بھی دینی ہے۔ ارے تم فکر نہیں کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ارے بیگم اللہ مالک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بیٹا اسکول چلا گیا؟ اور ہاں چائے بھجوا دو مجھے جلدی فٹافٹ۔ ہاں ہاں دے رہی ہوں، بس نکال کے آپ کو بھیجتی ہوں۔ 3 مرلے کے گھر میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے علاوہ بھائی بہن اور ماں باپ کے ساتھ رہنے والے مقصود کا واحد ذریعہ معاش یہی ایک چھوٹی سی
शब्बीर ने देखा कि मकसूद सुबह दुकान खोलने के लिए घर से निकला तो दरवाजे की कुंडी में बिजली का बिल अटका हुआ था। मकसूद ने हस्बे आदत बिल उठाया और उसे देखे बगैर जेब में रख लिया। फिर वो दुकान खोलकर ग्राहकों को निपटाने में मसरूफ हो गया। दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए उसने दुकान बंद की तो वो कहीं खोया हुआ सा था। घर में दाखिल हुआ तो बीवी ने टोक दिया। क्या हुआ, क्या भूल गए? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या भूल रहा हूँ। हाँ, देखो मैं तो भूल ही गया था। बिल आया है आज, देखो कितने का आया है। अल्लाह करे कम का आया हो। बाद में खाऊंगा। मैं आ रहा हूँ, मैं दफ्तर से हो क्या। अच्छा जल्दी जाइए, जल्दी वापस आइएगा। आप परेशान नहीं हो? या अल्लाह। 82 यूनिट का 41,000 का बिल वाकई हैरतनाक था। किस हिसाब से, किस तरह, और 3 मरले के मकान में कौन से एसी चल रहे थे सिवाय 2-4 पंखों और कुछ बल्ब के। मकसूद का सर चकरा रहा था, लेकिन उसने तहम्मुल का मुजाहरा किया। शब्बीर ने देखा कि बिजली के दफ्तर के बाहर लोगों का रश था। सभी बढ़े हुए बिलों से परेशान होकर आए थे। मकसूद ने अंदर जाना चाहा तो गार्ड ने उसे रोक लिया। भाई इसको ले जाओ अंदर दफ्तर में साहब के पास। ठीक तो हो जाएगा ना भाई? भाई देख लो, साहब से मिल लो जाके। बड़ी मेहरबानी। जी आप बताइएगा आपका क्या मसला है? सर ये देखिएगा बिल बहुत ज्यादा आ गया है, इसको ठीक कर दें। आप ऐसा करें सर, भर दें, ये अगले महीने एडजस्ट होके आ जाएगा। ठीक है सर कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं भला इतना ज्यादा बिल कैसे भर सकता हूँ? देखिए जैसे भी आप भरें, ये आप घर का गुजर बसर करता हूँ, मैं इतना ज्यादा बिल कैसे भर लूंगा सर? मैं लोगों की तरह रिश्वत नहीं लेता साहब। आप मुझे रिश्वतखोर कह रहे हैं? सर मैं आपको रिश्वतखोर नहीं कह रहा हूँ साहब, आपको इस कुर्सी पे बैठने के अहल भी नहीं हो। क्या मतलब है आपका? ये बिल किसने भेजा है? आप लोगों ने भेजा है ना, तो कम भी आप करो ना इसको। ये बिल तो आपको भरना पड़ेगा। अब जाइए आप।
اس سے پہلے کہ گارڈ مقصود کو پکڑ کر باہر نکال دیتا، مقصود خود بوجھل قدموں سے باہر نکل آیا. اس نے بل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے ہوا میں اڑا دیا. اس رات مقصود شدید رنج اور غصے کے عالم میں ساری رات جاگتا رہا اور پھر پتہ نہیں کب اسے نیند آ گئی. شبیر نے دیکھا کہ صبح کے وقت مقصود کا بیٹا اسکول جانے کے لیے تیار تھا اور چائے پی رہا تھا. بیٹے آپ ابھی تک چائے پی رہے ہیں؟ چلیں اسکول جانا ہے آپ نے، ابھی کپڑے بھی چینج کرنے ہیں آپ. اور ابھی تک آپ کے بابا سو رہے ہیں، آپ نے اٹھایا نہیں ان کو. چھوڑ دیں میں اٹھاتی ہوں. مقصود مقصود اٹھیے. مقصود کتنی دیر تک سوتے تو نہیں؟ مقصود ابا بابا ادھر آئیے جلدی، دیکھیں مقصود کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. کیا ہوا بہو؟ دیکھیں یہ اٹھ ہی نہیں رہے. مقصود میرے بیٹا مقصود ہاں بیٹا جلدی سے لاؤ. تم بہو جاؤ پانی لے کر آؤ. جی مقصود میرے بیٹا مقصود 82 یونٹ بجلی کے 41,000 روپے کا بوجھ غریب مقصود برداشت نہ کر سکا اور اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا. ایک غریب محنت کش بجلی والوں کی بے حسی کی نظر ہو گیا، لیکن انہیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی جیے یا مرے. شبیر نے غریب محنت کش کی اچانک اور مبینہ صدماتی موت پر تشویش اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اوور بلنگ کرنے والوں اور اپنی غلطی تسلیم کر کے اسے ٹھیک نہ کرنے والے اہلکاروں کو نہ صرف نوکری سے برطرف کیا جائے بلکہ مرحوم کے اہل خانہ کو معاوضہ بلکہ ایسا انتظام کیا جائے کہ آئندہ اس قسم کا بدقسمت واقعہ رونما نہ ہو سکے. دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. فیصل آباد میں سمندری کے علاقے گلشن عزیز ٹاؤن کے رہائشی اسلم کو اللہ نے 9 بیٹیاں اور ایک بیٹے سے نوازا تھا. اسلم ایک آرٹسٹ تھا جو ٹرکوں، بسوں اور رکشوں پر پینٹنگ کر کے اچھے پیسے کما لیتا تھا. زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی. 2 بیٹیوں کی شادی بھی کر دی تھی لیکن شاید اسلم کو ابھی کئی آزمائشوں سے گزرنا تھا. شبیر نے دیکھا کہ اسلم ایک ٹرک پر پینٹ کر رہا تھا اور ٹرک کا مالک اس کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا. یار استاد اس میں کوئی اچھا سا شعر تو لکھ دو. ارے بھائی یہ کام تو مکمل ہو جانے دو پھر وہ بھی لکھ دیں گے. مناسب گزر رہی تھی. وہ اکثر گھر میں بھی کینوس پر بسوں اور ٹرکوں کے لیے
असलम ने 2 बेटियों की शादी कर दी थी, बाकी बेटियां घर में थीं। बेटा अभी छोटा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि असलम एक ट्रक पर डिजाइन बना रहा था कि अचानक ट्रक ने पीछे की तरफ सरकना शुरू कर दिया। असलम बुरी तरह खाइफ हो गया। अरे लाला इसे रोको, ये तो पीछे आ रहा है। अरे लाला ब्रेक लगा, लाला। अल्लाह खैर या अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। ट्रक मालिक ने देखा तो दौड़ा हुआ आया और ड्राइविंग सीट पर चढ़कर बैठ गया। ट्रक रुक चुका था, लेकिन इतनी देर में असलम एक छोटी सी खाई में गिर चुका था। बहुत से लोग उसे बचाने के लिए नीचे खाई में उतर गए। असलम भाई क्या हुआ? उठो उठो, भाई मत करो। अरे मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे कोई उठाओ, उससे उठा नहीं जा रहा। हिम्मत करो, अरे उठाओ यार, अस्पताल लेके चलो। उठाओ उठाओ उठाओ। अरे अरे इस हादसे में असलम चलने फिरने से माजूर हो गया था। बैसाखी ने उसकी जिंदगी महदूद कर दी थी। हाथों में भी रेशा पैदा हो चुका था, इसलिए अब वो मजीद पेंटिंग करने के काबिल नहीं रहा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि असलम की शादीशुदा बेटी और उसके शौहर में झगड़ा हो रहा था। असलम की बेटी बुरी तरह रो रही थी और उसका शौहर वैश्यों की तरह उस पर चीख रहा था। और जोर से रो यहाँ पे। मनूस औरत जिस दिन से आई है मेरा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी क्या गलती है? मनूस निहायती मनूस है तू। निकल जा मेरे घर से, निकल। असलम की बेटी ज़ारो क़तार रोती रही। फिर शब्बीर ने उसे घर से निकलते देखा। असलम की बेटी को उसके शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया था और वो शदीद सदमे का शिकार थी। एक दिन असलम चेयर पर बैठा ट्रक अड्डे पर काम कर रहा था कि उसकी बीवी का फोन आ गया। हेलो हाँ बोल। असलम, आप जल्दी घर आ जाए। उसने खुद को आग लगा ली है। क्या? अरे हमारी शहजादी बेटी ने, आप जल्दी घर आ जाए वरना वो मर जाएगी। आप जल्दी आ जाए, खुदा का वास्ता। तू एक काम कर, उसमें पानी तो डाल, मैं आ रहा हूँ। हाँ। अरे कोई है मेरी मदद करो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे कोई है मेरी मदद करो। क्या असलम भाई? अरे भाई, मेरी बेटी ने आग लगा ली अपने आप को। मुझे जल्दी से घर पहुंचा। चलो अल्लाह खैर करे, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। गाड़ी ले यार, मुझे ले आ जाओ आप। नहीं चलो आप। फिर शब्बीर ने देखा कि लोग उसे उठाकर गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे। असलम की बेटी काफी झुलस गई थी। इलाज मुआलजे के लिए रकम दरकार थी। असलम ने अपनी बस बेचकर बेटी का इलाज करवाना शुरू कर दिया था। शब्बीर ने देखा कि असलम की बीवी अस्पताल में मौजूद थी कि उधर से एक डॉक्टर का गुजर हुआ तो असलम की बीवी ने उसे रोक लिया। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? बच तो जाएगी ना डॉक्टर साहब? हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, आप दुआ कीजिए। या अल्लाह। मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची।
मेरी बच्ची मेरी बच्ची असलम की शादीशुदा बेटी तलाक का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। इस अलमनाक मौत के दूसरे दिन दूसरी बेटी को भी तलाक हो गई और वो अपने बच्चे लेकर बाप के घर आ गई। असलम को पै दर पै सदमे उठाने पड़ रहे थे। बस बेचकर जो रकम हासिल हुई थी वो बेटी के इलाज पर लग गई थी। अब घर में फाकों की नौबत आ गई थी। हौसला करो असलम, मुझे देखो, मैं भी तो माँ हूँ, मैंने भी तो सब्र किया है ना। मुझसे हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? पता है, मैंने बक्से वाली बाजी से बात की है, उन्होंने मुझे काम पे भी रख लिया है। बस तुम अपना ख्याल रखो। असलम घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ रो रहा था और उसकी बीवी उसे तसल्ली दे रही थी। ख्याल रखूं मैं अपना, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। शब्बीर ने बाप को यूं रोते देखा तो उसका 9 उम्र बेटा बाप के गले लगकर उसे दिलासा देने लगा। तुम्हारा बाप भी बड़ा बदनसीब, हर वक्त ईमान रहता है, पता नहीं कब मर जाए। तुम एक काम करो, जल्दी से बड़े हो जाओ, तुम्हें अपनी माँ का, अपनी बहनों का सहारा बनना है। अब्बू आप ऐसी बातें नहीं कर। ਤੁਰ नहीं मैं सकता जी, ते ना मैं कोई कारोबार कर सकता। राशा हो गया जी, रोटी भी मेरे बच्चे मैनू खवांदे आ, पानी भी बच्चियां पिलांदियां, बाहर भी मंजी चुक के खड़दियां, चुक के लियांदियां, मैं तुर नहीं जी सकता। तो किस तरह से घर का निजाम चल रहा है? बाल जी वो घर दी मेरी जड़ी आ वो बेचारी मंग पिन के लियांदी आ जी, ते तां गुजारा हुंदा जी। घर दूसरी कोई गुजारा नहीं हो रहा है, 9 बच्चियां नूं कमाउण वाला आसरा भी कोई नहीं। ये तो सिर ते बैठी सी, ये भी एक्सीडेंट हो गया। किसी वक्त रोटी पकदी साडी, किसी वक्त 8-8 दिन रोटी भी नहीं साडी पकदी। गुरबत दे विच रहण दे, साडी कोई ना आंढ ना कोई गुआढ़, साडा शहर भी कोई मदद नहीं कर। अब असलम के घर में सिर्फ वीरानी और दुख है। असलम की बीवी लोगों के घरों में काम काज करके घर के अखराजात चलाती है। बेटियों को दूसरों के घरों में काम करने की इजाज़त नहीं, इसलिए वो घर में रहती हैं। शब्बीर का कहना है कि तकदीर का लिखा टाला नहीं जा सकता। किसने सोचा था कि मेहनत मजदूरी करने वाला आर्टिस्ट मजदूर एक दिन कसमा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहा होगा। बेटी के बाद 9 उम्र बेटे की अचानक मौत ने तो उसकी रही सही कुव्वत भी खत्म कर दी थी। शब्बीर ने मुखैर हजरात से अपील की है कि असलम की माली मदद की जाए और उसका इलाज कराया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बच्चे फूलों की तरह होते हैं, नर्मो नाजुक, शोख, मुस्तैद, चालाक।
कौन है जिसे बच्चे अच्छे नहीं लगते होंगे। माँ बाप के लिए तो बच्चे ही सब कुछ होते हैं। वालिदैन के दिलो जान, घर की रौनक और खुशियां बच्चों ही के दम से होती हैं। चार सद्दा में एक फूल सी बच्ची अपने बाप के बगैर न खाना खाती थी और न सोती थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि चार सद्दा के घर के एक बड़े अहाते में एक बच्ची छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल कूद में मसरूफ थी कि आटा गूंथते हुए उसकी माँ ने उसे आवाज दी, मरियम, मरियम मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, इतनी रात हो गई है, बस अब अंदर आ जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। नहीं अम्मी, तब अब्बू आएंगे मैं तभी खाना खाऊंगी। अब्बू तो पता नहीं कब आएंगे और आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लो अम्मी, सुबह ही तो मैंने खाया था। अच्छा भाई नहीं खाओ, इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। जी अम्मी। ये देखो कितने रफ बाल हो रहे हैं, मैं आपके सर में तेल लगा दूं? जी लगा दे। चलो आ जाओ फिर। मरियम बादिल नाखास्ता माँ के साथ चली गई। मरियम की माँ बेटी के बालों में तेल डालकर कंघी करती रही। गुड़िया एक बात कहूँ, मानोगी? जी अम्मी मानूंगी। आप सारा सारा दिन खाने पे ना अब्बू का वेट मत किया करो। क्यों? क्योंकि वो देर से आते हैं। तो अच्छा मेरी शहजादी, एक बात तो बताओ, हाँ आपको ज्यादा अच्छा कौन लगता है, अम्मी या अब्बू? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। लेकिन वो तो आपसे प्यार ही नहीं करते। वो मुझसे प्यार करते हैं पर डांटते हैं तो मैं इसलिए तो उनसे डरती हूँ। मरियम की माँ बेटी की कंघी करती जा रही थी और कहीं ख्यालों में खोई हुई थी। आज मैं भाभी के साथ ना डॉक्टर के पास गई थी। लेडी डॉक्टर तो कह रही है अगर 7 मंथ में भी बेबी हो जाता है तो सब नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर की बात समझाना तुम्हारा काम। अच्छा ये बताएं, अगर बेटी हो गई तो नाम क्या रखेंगे? बेटी हो तो नाम भी तुम खुद ही रखेगा। क्यों, क्या आपको बेटी पसंद नहीं है? नहीं, बेटी पसंद तो है, लेकिन क्या लेकिन? देखो अभी मेरा दिमाग उलझा हुआ है, काम का टाइम है, मैं काम पे जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। अरे मगर शौहर चला गया और मरियम की माँ किसी सोच में डूब गई। मियाँ बीवी में बहुत शदीद झगड़ा हो रहा था। मुझे दुख है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। कैसा झूठ? मेरी मंगनी हुई थी जो कि टूट गई, कोई निकाह नहीं हुआ। निकाह हो जाता ना ज्यादा अच्छा। क्या मतलब? आप मेरे साथ खुश नहीं हैं? खुशी मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कभी खुश नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? एक दफा खुलकर क्यों नहीं बताता? मैं ये रोज रोज के तानों से ना तंग आ गई हूँ। मुझे शक है कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। क्या? कितने घटिया और नीच इंसान हो तुम! तुम्हारी हिम्मत कैसे है ये बात करने की? चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। अम्मा! इतनी बड़ी बात! मरियम का बाप इल्जाम लगाकर चला गया तो मरियम की माँ से आंसू टपकते देखे गए, जिसमें मरियम अपनी माँ को हैरानी से देख रही थी। मरियम के बाप ने कुछ अरसा पहले अपने ही रिश्तेदारों में शादी की थी। मरियम का बाप शकी मिजाज इंसान था। गुजर बसर के लिए उसने एक परचून की दुकान खोल रखी थी। मरियम की पैदाइश के बाद वो बुझा बुझा रहने लगा था। शब्बीर ने देखा कि मरियम का बाप दुकान में था और महल्ले का एक शख्स सौदा सलफ लेने के बाद मरियम के बाप से गपशप कर रहा था। वेदला, बेटी कैसी है तुम्हारी? माशाल्लाह से अब तो बड़ी हो गई। हाँ, अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई। स्कूल में एडमिशन कराया इनका? अरे अल्लाह को मानो, हमारे यहाँ कहाँ रिवाज है बच्चियों को पढ़ने का। अरे भाई जमाना तो बदल गया। जमाना चाहे लाख बदल जाए लेकिन हम तो नहीं बदले। इसी दौरान 4 साला मरियम खेलती कूदती दुकान पर आ गई और वो टॉफियों और बिस्किटों के डब्बे पर टूट पड़ी। अब्बू ये दे दे, ये दे दे और ये भी दे दे। ये मैं दे देता हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी घर पर है और उनके लिए भी चीज दे दे। अच्छा, अम्मी घर पर हैं, तुम ये सामान ले लो, लेकिन सीधी घर जाना तुम। और अब्बू बड़ी ईद आने वाली है, मुझे बकरा चाहिए, आप ला देंगे? हाँ हाँ बेटा, ला दूंगा बकरा, लेकिन सीधे तुम घर जाना, बीच में नहीं कहीं रुकना। ये लो।
उबैदुल्ला की बेटी कुछ बरस बड़ी हुई तो इस दौरान उसका वक्त ये सोचते हुए गुजरता था कि वो जिस बेटी को पाल रहा था वो उसकी है भी कि नहीं। बीवी के किरदार पर शक की वजह से मियां बीवी के ताल्लुकात भी इंतहाई कशीदा थे, लेकिन खानदानी निजाम की वजह से घर टूटने से रह गया था। कभी कभी उबैद को पक्का यकीन हो जाता था कि मरियम उसकी बेटी नहीं थी, और कभी कभी वो अपनी इस सोच से शर्मिंदा होकर अपने आप को कोसने लगता था। शब्बीर ने देखा कि मस्जिद से सारे नमाजी जा चुके थे। उबैद आखिरी नमाजी था। मौलवी साहब भी जाने के लिए उठे तो उबैद ने उनसे एक सवाल कर लिया। मौलाना, एक मसला पूछना है। फरमाइए। आप मुझे ये बताइए कि क्या शक की बुनियाद पर किसी से नफरत की जा सकती है? इस बात की हमारा मजहब इजाजत नहीं देता कि आप शक की बुनियाद पर नफरत करें या किसी पर शक करें। अगर आपके पास कोई इसका सबूत भी मौजूद है ना, हमारा मजहब कहता है कि पर्दा रखा जाए, उसको राज रखा जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है जो आप सोच रहे हैं। खैरियत तो है? आपका कोई मसला है? नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। शब्बीर ने देखा कि उबैद मस्जिद से निकलते वक्त किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। बड़ी ईद के दूसरे दिन उबैद पर फिर से शक का दौरा पड़ा और उसे यकीन हो गया कि मरियम उसकी बेटी नहीं है। उसे अपनी बीवी पर शदीद गुस्सा आने लगा। शब्बीर ने देखा कि उस दिन मरियम के बाप उबैद का मूड अच्छा था। बकरीद का दूसरा दिन था। मरियम ईद के कपड़े पहने बाप के सामने आ गई। आज ईद का दूसरा दिन है, आपने कहा था कि आप मुझे नहर की सैर कराने लेकर जाएंगे। हाँ, चलो नहर की सैर करने चलते हैं। अम्मू, मैं अम्मी को बता दूं? अम्मी को छोड़ो, अम्मी को बताओगे तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। ठीक है अम्मू, चल। ठीक। शब्बीर ने देखा कि बाप अपनी प्यारी सी बेटी की उंगली थामे दूर दरिया के किनारे किनारे चल रहा था। उस वाक़े के 2 दिन बाद प्यारी सी मरियम के दरिया किनारे से गला कटी लाश बरामद हुई तो पूरे गांव में सख्ता तारी हो गया। मरियम को उसके बाप ने नाजायज होने के शुबे में बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया था। इस शर्मनाक कहानी के बारे में पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो ये है। इन्हीं फैमिली के जो बयानात किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।